శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీడా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోండి. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర
कैंकर्य अभिवृद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम् आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये। सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம். தெழி குரல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில்கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே என்கிறார் நம்மாழ்வார். அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவிக்க இருக்கிறோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. இதோ பாதாதி கேசமாக பகவானை செவிக்கலாம். இன்று ஐப்பசி மாதம் 24வது நாள் வெள்ளிக்கிழமை துவாதசி திரையோதசியுடன் கூடிய இந்த நாளிலே பகவானை செவிக்கலாம். திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்து அனுகிரகத்தை பெறுவோம். விண்ணோர் தொழும் வேங்கட மாமலையே அண்ணா அடிய நிடரை களையாயே என்கிறார். அப்படி இந்த உலகில் வாழ்வது துன்பம் என்று என் நெஞ்சில் பட்ட பின்பு என் திருத்தொண்டிற்கு பகையாக இருப்பதைப் போல அருள வேண்டும் என்கிறார். அந்த பகவானை சேவித்துக் கொண்டு அந்த நாச்சிமார்களையும் சேவிக்கலாம். சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து இப்பொழுது விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை சேவிப்போம். பகவானுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்யப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து சுத்தி புண்ணிய வாசனம் கலசாராதனையை செவிக்கலாம். திருமலை அப்பனை செவித்து கொண்டு அவனுடைய பரிபூர்ணமான அருளை நாம் பெறலாம். இதோ விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனம். தாயார்களை செவிக்கலாம். இன்று வெள்ளிக்கிழமை மிகவும் விசேஷமான நன்னாள். திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாரின் கார்த்திகை மாத பிரம்மோற்சவம் ஆரம்பமாகியது. சேவிக்கலாம். இதம் பாத்தியம் சமர்ப்பயாமி, இதம் அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, இதம் ஆத்தியம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. சர்வதீர்த்தஜலம் புண்ணியம் பாவனம் சர்வகாரணம் விஷ்ணுபாதோத்பவம் சுத்தம் சரமங்களதாயினா கரிஷ்யமான்சகர்மணா நிர்விக்ஞான் வசமாப்யர்த்தம் விஸ்வக்சேனாராதனம் கரிஷ்யே. விஸ்வக்சேனம் சதுர்பாஹும் சங்கச்சக்கரசமன்விதம் ஜாப்திம் சிருங்கேதும் சுஷ்பர்தவாஹனம் பூர்வாஷாடோத்பவம் தேவம் தட்சிணாகுமர்ச்சேத். ஆக்னேயோஸ்மாத்யதாம் ஹேத்வாஷேதாத்தம் ஹேதோத்சம்போ வைராஜ்யத்தே சுதநிதத்தாம் பிரேஷ்யாம் தேசோபிதானாமனாதிः யாமே சுஸ்தான் தந்தான் தாத்து. ஓம் பூ பத்மாகாரண்டே விஸ்வக்சேனமாவாஹயாமி, சாந்தமாவாஹயாமி, ஹரமாவாஹயாமி, அமிதமாவாஹயாமி, தத்பத்னீம் சூத்ரதீமாவாஹயாமி, வாமேஜ்யாமாவாஹயாமி, तत्पत्निकस्यसेनसेनमासनं विश्वक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाचमनं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विज्ञान्ते. आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्य च कुर्यात् सुरभारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरज्ञातः पुण्यः पुण्यहं वाचयिष्ये. ओं वाचतां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्वास्त प्रोक्षितमस्तु. प्रजापति प्रेतां प्रेतां पखान् प्रजापतिः श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु अपान् श्याम्यन्त्वायुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु अपान् श्याम्यन्त्वायुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु अपान् श्याम्यन्त्वायुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं
तमोढमस्वागं सुरे त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यतो वृतानि वस्तुसे इन्द्रस्य युज्यसखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीव चक्षुरासं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं तस्विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्तरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रेमं सदे द्रविणोदा वीरविषण्णो द्रविणोधारा आस्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्करुतोपविशं यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेति यतदिहन्यं पश्येति तावत् कुरुयत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भवति पुरोक्तस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिवेशना श्रोतन्त्रपशुद्धं शान्तत्थं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु स्वस्तिन इन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषाश्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्टेमि स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु ओं भूवति पुरोक्तस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिवेशना श्रोतन्त्रपशुद्धं शान्तत्थं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मभ्ये नमः सद्यां तरं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावृद्धेन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूवति पुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिवेशना श्रोतन्त्रपशुद्धं शान्तत्थं स पुण्यावाचकर्मणे वृद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्थान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षुषे योपस्वतमोर्धस्तस्य वाजे तेन उषतीरिव मात्रः तस्माहरङ्गमापो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णास्य पावकायास्य जातः कस्य वयाः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रविरूपास्तान् आपस्तकुस्वनाभवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणि यः पोता समनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने क्रत्वा कृतकं रणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वेदमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे अभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्या गाहाति यस्यै बह्वीस्तनुवा वितपृष्टाः ते आमनन्दस्तमार्जेषु वयग्गुस्यां प्रतवरीणां वैश्वानरो रश्मिर्मावनातु वातः प्राणेन श्रोमया भूः येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामगम्भेण्मयं तेन ब्रह्मविदा वयं पोतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सनिधि सहमाप्नातु सोमस्वस्यावरणस्समीक्षा यमराजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु दक्षयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषं षण्णोऽस्तद्वदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राचान्तिदेवार्तुजो मार्जयन्ताम् दक्षिणायां दिश्मासाः पुत्रो मार्जयन्तां प्रतीक्षां दिशगृहः पशवः मार्जयन्ताम् उदीचां दिशा भोषदयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथोदराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तो अष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशानमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वच्छने तद्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तो अष्पदे शग्मया सुं सदा ते सक्षेमहि शरण्या गातमत्या आवह क्षेमोते गैरन्नो यूजं पातस्तस्यभिस्सदानः अमीवः वास्तो अष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखासेवयेदिनः अडोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहाजानीतोऽस्यन्तोः तमः कृतं वस्तुति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशम् सप्तः प्राणाः प्रबन् सप्ताः सप्ताक्षः समितः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रयत् सर्वे सान्दन्ते सिन्धव सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसास्तेनेषु भूत तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनो गृध्राणागस्वैतर्वरानागस्सोमः पवित्र मध्ये तिरे भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजोह्येको झमानो निषेदेजः आत्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनता भाषा गुरभारण्यदन्ताम्बुलं समर्पयामि स्वर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் அடுத்ததாக சேவிக்க இருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்று கூறுவார்கள். இந்த திருமுலை சாற்றுதல் என்பது மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் திருத்துழாய் சேர்த்து புஷ்பங்களால் அர்ச்சனை செய்து தேவதைகளை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த அங்குரார்ப்பணம். அதாவது எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் கலியுக வேங்கடவனாக எழுந்தருளி அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை செவிக்கும் பாக்கியத்தை அந்த தேவர்கள் பெறுகிறார்கள் இதன் மூலமாக. ஆகவே அவர்களை எல்லாம் வரவேற்கிறார்கள். அஷ்டதிக்பாலர்கள், நித்திய சூரிகள் மற்றும் தேவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்காக இந்த பூஜையை செய்கிறார்கள், அங்குரார்ப்பணம் என்பது. அப்பொழுது அந்த பகவான் திருமலையில் உரைகின்ற திருத்துழாய் மாலையாக அழகு செய்யப்பட்ட முடியை உடையவனாய் நீ அனைவருக்கும் அருள் புரிவாயாக என்றும், விலங்கல் குடுமி திருவேங்கடம் மேய அலங்கல் தொழப முடியாய் அருளாயே என்று தன்மேல் உலவுகின்ற சந்திரனும் சூரியனும் நேராக போக முடியாமல் விலகிப் போக வேண்டுமென ஓங்கிய முகடுகளை உடைய திருமலை, செல்வம் நிறைந்த திருமலையில் பொருந்தி உரைபவனாகி அமுதம் போன்ற இனிமையானவனே, அடியவனான எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும். சீரார் திருவேங்கட மாமலை மேய ஆறாவமுதே அடியேற்கு அருளாயே என்கிறார். அந்த ஆறாவமுதே என்பது இந்த அமுதம் தேவர்கள் உலகில் இருப்பது அன்று. எப்பொழுது அனுபவித்தாலும் மனநிறை அடையாத நிரதிசிய போக்கியமானவனே, சீரார் திருவேங்கடம் வைகுண்டத்தை காட்டிலும் செல்வம் மிக்கது காணும் திருமலை என்றும், வானை தொடும் உச்சியை உடைய திருமலையிலே பொருந்தி இருக்கும் தேவர் தலைவனே, நீ உரிமேல் வைத்த நல்ல வெண்ணெயை அமுதமாக கொண்டு உண்டாய். வாமனனாகி மண்ணை இரடியால் அளந்தாய். அடியவனாகி எனக்கு அருள் செய்ய வேண்டும். கோபாலரை போலவோ மாவலியை போலவோ நினைத்து நீ எனக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் என்கிறார். அப்படியே உண்டாய் உரிமேல் நறுனை அமுதாக கொண்டாய் குரலாய் நிலம் ஈரடியாலே விண்தோய் சிகர திருவேங்கடம் மேய அண்டா அடியனுக்கு அருள் புரிவாயே என்று. அண்டன் என்றால் தேவன், இடையன் என்று பொருள். இப்படியாக அந்த எம்பெருமானை சேவிக்கிறார் அந்த பாசுரங்களால். அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு இப்பொழுது ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ திருவேங்கடா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பகவானை சேவித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். नागराजमावाहयामि, सहस्रेशमावाहयामि, शेषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि. प्रतिहरदेवताभ्यो नमः. इदमासनम्, इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाचम्यं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. हरे ओम. स्वस्ति नोः वेदामश्विनाभगः, स्वस्ति देवेन्द्रनरुणः, स्वस्ति पूषामसरोदादनः, स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः, स्वस्ति वायुं बभ्रामहे सोमं, स्वस्ति भुवनस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं, स्वस्ति आदित्यासोः भवन्तुनः, विश्वे देवानो अद्या, स्वस्ति वैश्वानरो सरग्निः, स्वस्ति देवावन्त्रवः, स्वस्ति नोः रुद्रः पात्वंवसः, स्वस्ति मित्रावरुणः, स्वस्ति वत्थे रेवती, स्वस्ति इन्द्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नोः इते कृधि, स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आमिव, पुनर्थाताघ्नता जानता सङ्गमे महि, स्वस्ति नन्दार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम्, असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाभिवारिहेम, अंहों च माङ्गिरसञ्जयञ्च स्वस्याः त्रेयं मनसा चदाक्षं प्रेतपाणि शरणं प्रपद्ये, स्वस्तं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே
ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை செய்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த ரக்ஷைகளில் நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயா சூத்திரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு முறையை பூஜை செய்தார். இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தனம் காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். பகவானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் கரங்களிலே கட்டப்படும் கயிற்றிற்கு முறையை பூஜை செய்து இதோ அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பகவான், அதாவது மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்கள் தச அவதாரம் என்று கூறுவார்கள். அப்படி அந்த தச அவதாரங்களிலே ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒவ்வொரு நாமத்தை வைத்துக்கொண்டு பக்தர்களை ஏதோ ஒரு விதமாக அருளி செய்து கொண்டு அப்படி அந்த பகவான் நம்மை எல்லாம் அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு இதோ திருமலையிலே நேரடி ஒளிபரப்பில் கல்யாண உற்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த ரக்ஷாபந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். பக்தர்கள் அனைவரையும் ரட்சிக்கும் அந்த பரந்தாமனுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. நரசிங்கமாக வந்து இரண்யன் உடலை கிழித்து போட்டவனே, மிக உயர்ந்த திருமலையின் திரு அனந்தாழ்வானை படுக்கையாக உடையவனே, அடியனுக்கு அருள் புரிக என்கிறார். அவுணன் உடலம் பிளந்திட்டாய் சேனார் திருவேங்கட மாமலை மேய கொணாகா சுனையாய் குறிக்கோள் என நீயே என்று என்னையும் பிரகல்லாதனை போல் நினைத்து நீ அருள் புரிய வேண்டும் என்கிறார். நிலையற்ற இந்த மனித பிறவியை நீக்கி தனக்கு நிகராக செய்து தன்னுடைய அருளை புரியும் தலைமையை உடையவன், மேகங்கள் சேர்ந்திருக்கும் திருமலையில் உறையும் எனது ஆனை போன்றவனும் எனக்கு தந்தை போன்றவனும் பெருமான் என் நெஞ்சில் எழுந்தருளியுள்ளான் என்கிறான். மன்னா, இம்மனித பிறவியை நீக்கி தன்னாக்கி தன் இன்னருள் செய்யும் தலைவன் மின்னார் முகில் சேர் திருவேங்கடம் மேய என்னானை என்னப்பன் என் நெஞ்சில் உள்ளானே என்று கூறுகிறார் அந்த பகவானை. அதாவது முழு முதற் பொருளை கண்ட பின்பு ஞானியானவன் தன் நல்வினை தீவினைகளை விட்டு நீங்கி உலகிலே தொடர்பற்றவனாக முழு முதற் பொருளோடு மேலான ஒப்புமை அடைகிறான் என்கிறது முண்டகு உபநிஷதம் என்கின்ற ஒரு நூலிலிருந்து. பகவான் இறைவனோடு உயிர் ஒத்த நிலையை அடைவது தெளிவு என்கிறது. அப்படி தேனும் பாலும் தேனும் போலும் இனியவனே, திருமலை ஆகிய பெருமை பொருந்திய மலையிலே வசிக்கும் தலைவனே, நீ என் நெஞ்சை இருப்பிடமாக கொண்டு நிலை பெற்று இருந்தாய் என்கிறார். தேனே திருவேங்கட மாமலை மேய கோனே, என் மனம் குடி புகுந்தாயே என்கிறார். பகவானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு இதோ நாச்சிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அதாவது திருவேங்கடமுடையானிடம் எப்பொழுதும் கூட இணை பிரியாது இருப்பவர்கள் இந்த இரு நாச்சிமார்களும். அந்த நாச்சிமார்கள் எப்பொழுதும் கூட அனபாயினிகள் என்றும் அயோனிஜைகள் என்றும் கூறப்படுவார்கள். ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருப்பவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களுடைய பக்தர்கள் செய்த தவறுகளை மன்னித்து எம்பெருமானிடம் நமக்காக பரிந்து பேசுபவர்கள். அந்த தாய்மார்களுக்கு நாச்சிமார்களுக்கு இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை நாமும் செவிக்கலாம். இதோ அந்த பகவான் என்ன கூறுகிறார் என்றால், அந்த கரத்தினை கீழே காட்டும் பொழுது என்னுடைய தர்ம பத்தினியான பத்மாவதி தாயார் திருச்சானூரிலே கொலுவீற்றிருக்கிறாள். அவளை முதலில் செவித்து கொண்டு அதன் பிறகு என்னுடைய தரிசனத்துக்கு வாருங்கள் என்றும், இன்றிலிருந்து அவளுக்கு பிரம்மோற்சவம், கார்த்திகை மாத பிரம்மோற்சவம் ஆரம்பமாகியது. ஆகவே பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நிலையிலே இன்று வெள்ளிக்கிழமை தாயாருடைய பிரம்மோற்சவம் ஆரம்பமாகியது. காலையிலே துவஜாரோகணத்துடன் ஆரம்பமாகியது. அந்த தாயாரானவள் அங்கே பத்மாவதியாகவும் இதோ இங்கே எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே ஸ்ரீதேவி நாச்சியாராகவும் கொலுவீற்றிருக்கிறாள். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்ததாக பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பூமி பிராட்டியானவள்
எப்பொழுதும் கூட மிகவும் அமைதியாக பொறுமையே தன்னுடைய அணிகலனாக, அதாவது ஆபரணங்களாக வைத்துக்கொண்டு நிதானமாக செயல்படுபவள். அப்படிப்பட்ட அந்த பூமி பிராட்டிக்கும் இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இந்த காப்பு கட்டுதல் ரக்ஷாபந்தனம் என்பது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெறுகிறது. தராரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பூமி பிராட்டியை கூட நாம் சேவிக்கலாம். திருமலையில் மூங்கில்கள் பிளவுபட்டு வெள்ளிய முத்துக்களையும் ஒளியுள்ள மணிகளையும் சிந்துகின்றன. அந்த கண்ணனுடைய திருவடிகளைத் தவிர வேறொன்றுமையும் நான் அறிய மாட்டேன் என்றும், வேய் உண்டு உதிர் வேங்கட மாமலையே ஆயனடி மல்லது ஆயனடி அல்லது மற்ற ரதியேனே, வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய் மன்னி நின்றாய் நந்தாத கொழுஞ்சுடரே எங்கள் நம்பி சிந்தாமணியே திருவேங்கடம் மேய எந்தாய் இனியான் உன்னை நான் என்றும் வீடேனே என்கிறார். அதையாது அணையாத விளக்கை உடையவனே, எங்களுடைய குறைகளை தீர்க்க வல்ல நம்பியே, நினைத்த பொழுதே எல்லாவற்றையும் கொடுத்தருள வல்லவனே என்று அந்த எம்பெருமானை சேவிக்கிறார்கள். இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். ஓம் யதோன்மிந்திரம் சவாம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ சுத்தைருக்தைர்வாஹ ருத்தாம்சம் சுத்தாசீர்வாஹான் முக்து மை தேவா திரஸ்தமை தேவஹூதி தேவ்யா ஹோதா ராவணந்து பூர்வேரிஷ்டாஸ்யாம் தன்மாத்வீராஹ மக்யை ஜந்தம்யான ஹவ்யாகுர் சத்யாம் சௌம்யாஸ்து உத்பன்யமானமஸ்யாம் மேத்யம் பாப்மானம் பஜமானஸ்தந்து शिवानस्सन्तु प्रदश्चन्ना माता भूतर्षिदिनेन सौम्या कृणध्वगं वृषणा होतविंशते जातवेद भुवनश्रेतेः चतुर्सहस्रनिश्शतेः अग्निमश्वत्सादः व्यवागं शमीगर्भाजन्व्यामयो भूः पपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो हव्यं न प्रजानन् आदितेन मन्यस्वानुमतेन मन्यस्वा स्रस्तेन मन्यस्वा दिव्यो तप्रसुवा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवसदिमी धियो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मरसाधिमस्रच वेनावः सबुद्ध्या उपमासविष्टासस्योन्मतश्चवः ओं भो ब्रह्माणमावाहयामि ओं भो प्रजापतिमावाहयामि ओं स्वपितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोऽध्ययनं सोमर्वन्तमासु सोमो वीरं कर्मणि दातु साधन्यं ठगं सभे पितृश्रवणं वेदा तस्मै ओं भू सोमावाहयामि ओं भोर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्वः इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमान्मासेदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धत्तन्नागसुविशेषमानस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रलस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धत्तन्नागसुविशेषमानस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रलस्तत्रैवं यज्ञं यजमानंसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेऽस्तो वायुभूतेऽस्तो विष्णोर्मनसा भूतेऽस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरश पवित्रेः स वैष्णव्यो देवसविधप्रसोपनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्य रश्मिरापो देवीरग्रे भोऽग्रे भोऽग्रें यज्ञं नेताग्रे यज्ञवतन्धत्त युष्मानिन्द्रोणुत्तूर्ययूजमिन्द्रनिध्वमुत्तूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु पोसि विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु पोसि विष्णोऽस्तु दत्तां देवेभ्यो विष्णोऽस्तु पोसि स्रवासि ध्रुवासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्वा ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नाग सुविष्टे यजमानस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नाग सुविष्टे यजमानस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणय को वः प्रणयतु स प्रणयत्वापो देवी प्रणयज्ञं संसादयन्तनः नमनन्देहि गतपष्टावदागसहस्रभोषं यजमानेन्यञ्चदीहि को वैनक्तु स वैनक्तु तमेन्तां देवृषः पात्रान् देवेज्यायि दक्षप्रदो ब्राह्मणेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि अर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोमावाहयामि उपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि
सर्वदेवानावाहयामि आजभागे प्रजापतिष्ठनपामिन्द्राष्टनभाग्येष्टनपा सोमाष्टनभाग्येष्टनपा सोमाष्टनपामि अग्निशोमाहाभ्यानिष्टनपां प्रजापतिष्ठनपां ब्रह्मणेष्टनपामिन्द्राष्टनपामि वसुभ्यष्टनपां मरुद्भ्यष्टनपां रुद्रेभ्यष्टनपामि अपापस्पृश्या ओं श्री महाविष्णुवेष्टनपामित्राष्टनपां वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्योष्टनपामि शुभ्याष्टनपां पुष्णेष्टनपां कक्षाष्टनपामि कक्षदेवसमाष्टनपामि उपासने यज्ञाष्टनपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनरपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनरपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि सविधस्य स्वाहा अमृतमसवारणमसि अन्तर्धनवृक्ष अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठारक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो स्वरस्वस्य स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सो स्वरस्वस्य स्वाहा देवस्तास्वदाम्ना त्वच्छिद्रेण अक्षतेरिमामे ग्निष्टिकाधिनस्तन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च धनञ्जनद्भुतं च मित्राचमुदिन्द्रान्त वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सोऽसे नमः विरप्रसे नमः पङ्क्तिरासे नमः विसर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अन्त्यद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्वत्सबद्धजास्मान् प्रजा पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेतया अस्मिन् उपासनाग्निकुण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्ने यान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपा उपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिघाज्य चर्मसावित्र्या गृहीत्वा व्याहतिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मगस्ताः नमतेन मगस्ताः सरस्वतेन मगस्ताः दिवसविदप्रासाभिः ओं भूतिभिरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आहार होमान्ते स्वरमन्त्रपर्यातरुणात् प्राश्चितार्थमतो देवाय वैष्णवं होष्ये ऐतेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसेतप्रसवा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानसदेवतं समूढमस्वाहं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्या ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वस्तेतो वृदानुस्तेन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परं पदं सदा प्रसन् सूर्यः द्विजक्षरात् स्वाहा तद्विप्रासो भञ्जवोजा ध्रुवां तस्मिन्ते विष्णोरुत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मगस्ताः नमतेन मगस्ताः सरस्तेन मगस्ताः देवसविदप्रासाभिः
काम्यसतृप्याणि दक्षिणानां प्रतिगृहे कर्मणिखिलं यणसूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः प्रतिस्मृतिर्देवपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीभनोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिशक्त्या अभ्यमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमहरव्यक्ताख्य सप्तावृणेरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कुर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तल महातल सातल तल अतल सप्तपादालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डिशुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलगावती यशोवती इत्यष्टदेव प्रिय विराजिते इन्द्राग्नियमनिरतिवर्णवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षसरासर्पितक्षीरशुद्धोरकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रवञ्चशाकसान्मणि पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमणयसहस्रदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुषहारी रावलभद्राश्वकेतकमालकरमणकुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवरहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धिकेषु रातिप्रकाशे च आवृत अनावृत महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामासङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यो उत्तीर्य तिरैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कदराशेर्वर्षास्त्रावसाने एकैकवापकृष्णक्रमेण सर्वराश्वकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासित्यर्थं जगिडीकृताग्निष्ठामतराप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षप्रसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्याम्यर्चावतारस्वरूपरूपणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादिभिः उक्तगृहकन्यादानकल्पोक्ता कन्यादानमहादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रकलापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गेर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रीम् आङ्गेर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय
आंगीर्ष भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरानुद भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवान और्व वैदल पंचार्षे प्रराणिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्म्यां भृगो संकल्पतनियां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्साम धर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणिध्रुवत्रयार्षे प्रवराणिता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनियां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं चिकीर्ष्य सालंकृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धे विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை செவித்தோம். இப்பொழுது நாம் காண இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. இந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள், குங்குமமிட்டு, புஷ்பங்கள், திருத்துழை, அக்ஷதை போன்றவைகளால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் செவிக்கலாம் அந்த மாங்கல்ய பூஜையை. பகவான் மகாவிஷ்ணுவிற்கு 1000 நாமங்கள், அதாவது அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள். அச்சுதானந்த கோவிந்தா என்று தினமும் கூறிக்கொண்டே இருந்தால் நமக்கு உடம்பிலே நோய் ஒன்றும் வராது என்று கூறுகிறார்கள். ஆகவே சாத்தியமான அளவிற்கு அந்த அச்சுதா அனந்தா கோவிந்தா என்று கூறிக்கொண்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அனந்தனுக்கு இதோ 1000 நாமங்கள். அந்த 1000 நாமங்களிலே எந்த நாமத்தை கூறினாலும் அந்த பகவான் நமக்கு அருளிச் செய்வான். அப்படி அஜாய நமகா என்ற ஒரு நாமம். அந்த அஜாய நமகா என்றால் கோபிகைகள் அனைவரும் கண்ணனுடன் ஆடி பாடி கூத்தாடுவதும் அவனோடு அனவரத்தம் உலாவுவதும் அந்த பெண்களின் வீட்டு பெரியோர்களின் கண்களை உறுத்தின. இவ்வாறு பெண்கள் நடந்து கொள்வது சரியல்ல என்றும் தங்களுடைய குடும்ப கௌரவத்திற்காக இழுக்கு என்றும் அவர்கள் கருதினார்கள். ஆகவே இனி நீங்கள் கண்ணனை பார்க்கக்கூடாது, அவனுடன் பேசக்கூடாது, பழகக்கூடாது என்று அந்த பெண்களை கண்டித்து பார்த்தனர், அடித்தும் பார்த்தனர். ஆனால் கிருஷ்ணன் மீது இருக்கும் பக்தியானது வடிவெடுத்தவர்களாக கோபிகைகளால் ஒரு நொடி கூட கண்ணனை பிரிந்து இருக்க முடியவில்லை. இவர்கள் கண்ணனோடு பழகுவதை தடுக்க என்ன வழி என்று யோசித்த அந்த ஊர் பெரியவர்கள் தங்கள் வீட்டு பெண்களை நிலவறைகளில் அதாவது அடைத்து விட்டனர். அந்த நிலவறைகள் என்றால் மண்ணின் கீழே ஒரு வீட்டை கட்டி அது பூமியின் கீழே அதற்குள் வைத்து வைப்பார்கள், அடைத்து வைப்பார்கள். அந்த நிலவறைகளில் இருந்து வெளிவர முடியாமல், கண்ணனை காண முடியாமல் தவித்த பெண்கள், கண்ணா, இந்த தடைகளையெல்லாம் நீயே தகர்த்து உன்னுடைய தரிசனத்தை எங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தார்களாம். அவர்களின் பிரார்த்தனையை ஏற்ற கண்ணன் ஒரு லீலை செய்ய திட்டமிட்டான். ஆயர் பாடியில் பஞ்சம் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டன. அதை கண்ட ஊர் பெரியவர்கள்
கர்க முனிவரை அணுகி அந்த பஞ்சம் வராமல் தடுக்க வழி கூறுமாறு பிரார்த்தனை செய்தார்களாம். அதற்கு கர்க முனிவர், மார்கழி மாதம் வரப்போகிறது அல்லவா, அப்பொழுது உங்கள் வீட்டு பெண்கள் அனைவரையும் காத்தியாயினி நோன்பு நோற்கச் சொல்லுங்கள். விடியற் காலையில் எழுந்து பஜனை செய்தபடி யமுனைக்கு சென்று நீராடி நோன்பு நோற்றால் நாட்டில் மழை நன்றாக பெய்யும், பஞ்சம் ஏற்படாது என்று கூறினாராம் கர்கமுனிவர். அடுத்த நாள் ஊர் பஞ்சாயத்தை கூட்டி பெரியவர்கள் கர்கரின் அறிவுரைப்படி பெண்களை மார்கழி நோன்பு நோற்கச் சொல்வதென தீர்மானித்து அந்த பெண்களுக்கு ஒரு ஆண் துணை வேண்டும், இத்தனை கன்னி பெண்களையும் விடியற்காலையில் தனியாக அனுப்புவது சரியில்லை என்று சிலர் கருதி அந்த ஊர் பெரியவர்களுக்கு மார்கழி மாத குளிர் என்றாலே பயம். எனவே ஆண் துணையாக யார் செல்வது என்று யோசித்து கொண்டிருக்கையில் அப்பொழுது எப்பொழுதும் விஷமங்கள் செய்து கொண்டே இருப்பானே கண்ணன், அவனை இவர்களுக்கு மெய் காப்பாளனாக போட்டு துணைக்கு போகச் சொல்லுவோம் என்று கூறினார்களாம். அவன் செய்யும் விஷமங்களுக்கு இதுவே சரியான தண்டனை என்றனர். அதை அனைவரும் ஆமோதிக்க அந்த கோபிகைகளுக்கு பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல் இருந்தது. கண்ணனை பார்க்கக்கூடாது, அவனுடன் பேசக்கூடாது, பழகக்கூடாது என்று தடை போட்ட பெரியவர்களே இப்பொழுது அவனை பார்த்து பேசி பழக வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தந்துவிட்டார்களே என்று அந்த கண்ணன் எப்பேற்பட்ட லீலைகளை செய்துள்ளான் என்று எண்ணி எண்ணி மகிழ்ந்தார்களாம். அப்படி ஆண்டாள் சேவிக்கும் கண்ணன், அந்த கண்ணன் அவதாரம் எடுத்தவன் இந்த திருவேங்கடமுடையான். அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு மஞ்சள் குங்குமமிட்டு புஷ்பங்களால் அக்ஷதை பூஜை செய்து அதன் பிறகு அந்த நாச்சிமார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி அந்த மார்கழி மாதம் முழுவதும் நோன்பு என்ற சாக்கில் கண்ணனோடு ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்தார்கள் ஆயர்பாடி மக்கள். அதை அப்படியே பின்பற்றிய ஆண்டாள் தன்னை ஒரு கோபிகையாகவும், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை ஆயர்பாடியாகவும், வடபத்திர சாயியை கண்ணனாகவும், அவன் கோயிலே நந்தகோபன் திரு மாளிகையாகவும், தன் தோழிகளை இடைச்சிகளாகவும் பாவித்து மார்கழி நோன்பு நோற்று திருப்பாவை பாடினாள் என்று நமக்கு தெரிந்ததே. அப்படி அந்த கோபிகைகள் கண்ணனை அனுபவிக்க முடியாமல் தடுத்த தடைகளை போக்க எண்ணிய கண்ணன் ஆயர்பாடியில் பஞ்சம் ஏற்படுவது போல் அறிகுறிகளை உண்டாக்கி அதற்கு பரிகாரமாக பெண்களை நோன்பு நோக்க சொல்ல வேண்டும் என்று கூறி கர்கரை சொல்ல வைத்து அவர்களுக்கு பாதுகாவலர்களாக கண்ணனை ஊரார்கள் நியமித்து லீலைகள் செய்து கோபிகைகளுக்கு தன் அனுபவத்தை தந்தான். அப்படிப்பட்ட அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் இதோ மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாங்கல்யங்களை இப்பொழுது நாச்சிமார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருவேங்கடமுடையானை சேவிக்கலாம். प्रजापतिस्त्रियां निशः प्रजापतिस्तामगं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुताम् अथः सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेदवस्यता सौभाग्यमत्वै दत्वायादास्त्वं विपरेतना श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियम्बजोचरत्रिभ्यो ददाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधा मिदद्रौ श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसुमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. प्रजापतिस्त्वामगं राजानमसृजता
तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतवस्थता सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जादास्तं विपरेतना मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु तमग्ने हयास्यासन् मनसायतः हयासन् हव्यमूचेयानो देहि वे जग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्ताः नमते नमगस्ताः सरस्ते नमगस्ताः देवदेवता प्रासावीः ओं भूतिविरोक्तिमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होषे ऐते नमनस्वा नमते नमनस्वा सरस्ते नमनस्वा देवसवितप्रसवा इमां आज्यमितमभिगार्य इमां लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नारिवब्रूते अग्नौ लाजानवपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुसा स्वायुषोदो हि देनागुं रसेणोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्तामृतागुं मनु विश्वापदत्वया भुजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां राजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ राजानवपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुसा स्वायुषोदो हि देनागुं रसेणोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्तामृतागुं अनु विश्वावदत्वया भुजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां राजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ राजानवपन्ति दीर्घायुरस्तुरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुसा स्वायुषोदो हि देनागुं रसेणोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्तामृतागुं मनु विश्वावदत्वया भुजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमगस्ताः नमते नमगस्ताः सरस्ते नमगस्ताः देवदेवता प्रासावीः ओं भूर्तिविरोक्तिमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वन्तर्पर्यासनुनाथप्रायश्चार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐते नमन्यस्वा नमते नमन्यस्वा सरस्ते नमन्यस्वा देवदेवतप्सुवा ओं अतो देवावन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सुधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं सम्मूढमस्वागं सुरे स्वाहा रेणिपदाविचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यां धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानुपश्येन्द्रसेजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसुरेः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्यप्रासो वन्यवोजार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमगस्ताः नमते नमगस्ताः सरस्ते नमगस्ताः देशप्रासावीः ओं भूतिविरोक्तिमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्धं पुरुष्टातन्त्रं करिष्ये ऐते नमन्यस्वा नमते नमन्यस्वा सरस्ते नमन्यस्वा देवतपसुवा ओं यदस्य कर्मणोत्तीर्यमिद्यान्वनमहाकरम् अग्निस्वस्वशतासङ्कतो स्वाहा अग्नेः सुष्टुगते स्वतः दावतेनां कामानागसमुत्तरित्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्ने नवदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सुष्टुगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दावोदग्निस्तत्नराः जातवेदाभ्यो स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वायों चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा विशिष्टेभ्य स्वाहा बेडन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायुतमत्याश्रायुतमषट्कुलमत्तिनोक्तञ्च अग्ने अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेनमग्नपर्वाणि प्रतिनेतकल्पयन् स्वाहा तथा देवान् स्वाहा
स्वस्तिन्द्रो दस्वासन पूषा स्वेदाः स्वस्तिस्ताक्षरिष्टिं सुस्ना बृहस्पतिः स्वाहा यदो अस्वधिमे स्वाहा समितिस्तेजो तेजोमिदे स्वाहा यमस्ति क्योर्मे भाई स्वाहा सूर्यस्ति में चक्षुर में भाई स्वाहा सोमस्ति में चित्तम में भाई स्वाहा वायोर्धि में प्राणान में भाई स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में भाई स्वाहा सप्तते अग्नि समुद्र सप्तविश्वान् सप्तर्षि सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा जन्ति सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदर्भक्तः स्वाहा देवर्भक्तः स्वाहा पृथ्वीभक्तः स्वाहा वोषधि वनस्पति गंधर्वा सरस्वती भक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथ्वीजीर्णं वोषधि वनस्पति गंधर्वा सरस्वती जीर्णः स्वाहा समन्तां भवेशावदेन समर्पिः अमिन्द्रेण देवेभिरन्दां दिव्यं नभो यच्छ स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तविश्वा सप्तः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषध वनस्पतिन्द्राक्षिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां एतेनमुखस्तान्मतेनमुखस्तास्तेनमुखस्ताः देवतप्रासाभिः ब्रह्मणेन्मः सोमान्मः यथास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजो प्राच्यां विष्णोस्तनमसि सर्वान् समूष्यां ग्रन्थिं विसृज्याम् अद्भिः प्रोक्षा आप्यायन्त्वामिति जुहोतीम् आप्यायन्त्वा मा भवो हृदयमरिरां पृषदयश्च दिवं गच्छततो न वृष्टिमेरि स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपश्च त्र्यायुषं त्रिदेवानाः त्र्यायुषं तन्मे हस्तत्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतञ्च वर्चसे त्र्यायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपश्च त्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मे हस्तत्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतञ्च वर्तते त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतञ्च वर्चसे त्र्यायुषम् आपोहिष्ठामि अभोस्थान ऊर्जेदादन महेरणाय जक्षे योपस्वतमार्द तस्य भाजे तेनः विषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोष्टस्याय जन्मदा आपो जनिराजनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्विनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योऽध्याजो दातु योक्सूर्यन्द्रिये उदगां मतोनवाः सिद्धाजमानसरसमध्या समाभ्रवरो दाक्षसूर्यो विपत्सन्मनसापनादु भवञ्च मे सदस्य मे यज्ञवदे नमस्या यतेः न्यूनं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सत्यः नम्बा पुष्पैः नम्बा होत्रैः नम्बा वरदर्तारभाग्ने जातवे से भवान् वज्रदो नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासनानि कृन्तभया देवान् प्रपूर्णं तस्मै प्रायश्चित्तानि चैनान् होमकर्मात्म्यान् वेयान् देशान् चैनां श्रीकृष्णान् स्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियाध्यात्मनापति स्वात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः दातानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्ञोभारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः अग्निम् आदित्यं उपगच्छ सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். ஆண்டாள் தன் கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு
கூறும் படலம் இந்த வாரணம் ஆயிரம். அர்ச்சக சுவாமியும் அன்னமாச்சாரியரின் வம்சத்தினரில் ஒருவரும் இந்த தேங்காய்களை உருட்டிக்கொண்டு அந்த பாசுரங்களை பாடுகிறார்கள். இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாம் எல்லாம் வந்திருந்து என்னை மகட்பேசி மந்திரித்து மந்திர கோடி உடுத்தி மணமாலை அந்தரி சூட்ட கனா கண்டேன் தோழினான் என்கிறாள். அதாவது அனைத்து தேவர்கள் கூட்டம் வந்து என்னை பகவானுக்கு திருமணம் செய்ய உறுதி செய்தார்கள். பெண் வீட்டாரும் மாப்பிள்ளை வீட்டாரும் தங்களுடைய ஒப்புதலை தெரிவித்தார்கள். பின்னர் வெற்றிலை பாக்கு பூ பழம் மற்றவற்றை கூரை புடிவை அனைத்தையும் மந்திரங்கள் சொல்லி வாழ்த்தி எனக்கு அழுத்தியார்கள் என்று தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறுகிறாள் ஆண்டாள். அந்த பாசங்களை பாடிக்கொண்டே வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், எம்பெருமானுடைய திருக்கழுத்திலே இருந்த அந்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் அணிவிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொள்ளுகிறாள். அதைத் தொடர்ந்து பகவானுக்கே திரும்பவும் அனுப்புகிறாள். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து வேங்கடவனுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலையானது மீண்டும் பூமி பிராட்டிக்கு கொண்டு சென்று அணிவிக்கப்படுகிறது. பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொள்ளுகிறாள். இவ்வாறாக திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சூடி கொடுத்த நாச்சியார் அனுப்பிய மாலையை பகவானுக்கு சூட்டுகிறார்கள். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதைத் தொடர்ந்து அந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை பகவானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. இதோ பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட, உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அந்த பகவானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டி சேவித்து கொண்டு இப்பொழுது அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதன மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம் அந்த பக்தவத்சலனை பரந்தாமனை. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். அந்த அக்ஷதையை நம்முடைய வீட்டில் கல்யாணமாகாதவர்களுக்கு தூவி ஆசீர்வாதம் செய்தால் விரைவில் திருமணம் நடக்கும். विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।